Hi all. We'll start in some time while other people enter. Uh, maybe Poonam, if you can push one more reminder on group. Maybe कुछ लोगों को कैसे वो communication gap हो गया ना अपना. So while other people are entering, my quick check with my three हमारा जो तीन coordinators थे है Shama, Itasha and Garishma. So what is your view for today? I mean, how is the preparation done for all of us? If you want, I can unmute also. हेलो हाँ जी, या हेलो सर. हाँ, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. वो निशांत का चल रहा है सर, उनका मतलब ऑलमोस्ट. So yesterday, till yesterday, we understood what XPath is and how to use XPath as well to some extent, and then maybe like I'll take this XPath topic more in detail maybe in the next session, um, because today I thought of walking you through very important topic called as traversing, or you can say handling web table when we see how to go and read a web table. So now whenever I say a web table always consists of something called as rows and columns, right? Table always consists of something called as rows and columns. So let me quickly log in and show it to you, the table which I am referring to. So I log in into my application, as you can see. Remember, I'm using Firefox, but that doesn't mean I'm being using the older version of Firefox. मैं older version use कर रहा हूँ Firefox का, जैसे आप लोगों को मालूम है. But आप लोग you can use the this thing also, yeah, Chrome also, and with Chrome you have ChroPath, as you remember. ठीक है? So now one second. Okay. So now I'm on this view issues. I'm on this view issues now. So as you can see, there's this table, right? There's this table, and there are different set of columns, as you can see. ID as a column, category as a column, severity as a column. This topic would be very important for all of us, because web table is once you understand this, how to traverse across a web table. When you do this, it will be helpful for us to understand more important concepts. The similar concept I'll then later be using it and while we read and write Excel file. So similar concepts मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? And on the logic part also we'll understand many important things. So now what do I do is I'll quickly go and say something called as inspect element, as you know. ठीक है? Now I'll click on this, say any of the IDs over here. देखो ये मेरा जो ID है ना, ये say example 181. I'll just traverse, I mean, I'll just inspect this ID. As you can see, this ID. Okay. Now the good part is with me for my application, I may have different structuring of this web table, and you may have a different structuring of web table. So the good part is you will be able to practice separately, अपने लिए, and then you'll be understanding the structuring of the table which I'm showing you, and the structuring you have, so you'll be able to learn new thing even over there. ठीक है? तो अभी हम लोग समझते हैं स्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है. देखो, सबसे पहले मैं अगर वापस इसको स्पाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं एंड आई ब्रिंग इट टू, यू कैन सी देयर इज दिस div over here. ध्यान से देखना. हाँ, स्लोली आई विल गेट ऑन टू द वेब टेबल आल्सो.
ये देखो ये हेडर है एज यू कैन सी, और यू कैन सी टाइटल है बेटर, है ना. एंड देन एज यू कैन सी ये टेबल का आईडी कैन यू सी, एंड यहाँ पे ये हाईलाइट हो रहा है ऊपर. मेरे ख्याल से आपको ध्यान, थोड़ा मैं इसको नीचे ये देखो ऊपर में जब भी जैसे इसको मैं स्पाइक कर रहा हूँ, यू कैन से इसको माउस ओवर कर रहा हूँ तो पूरा टेबल हाईलाइट हो रहा है, राइट. सो दिस इज द टेबल विच आई एम इंटरेस्टेड इन. होप यू आर क्लियर नाउ. इसके ऊपर फॉर्म है अपने पास, लेकिन फॉर्म में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. आई एम इंटरेस्टेड इन दिस टेबल. ठीक है. अभी आप अगर कोई भी अगर आप टेबल देखोगे इन रियल लाइफ, इट में हैव इट्स ओन स्ट्रक्चरिंग. देखो अभी इसका स्ट्रक्चरिंग कैसा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो आप ऊपर देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड टाइटल, फिर कॉलम नेम है, एक बीच में एक ब्लैंक कॉलम है, और फिर हमारा डेटा शुरू होता है. बराबर. हमारा मेन कॉलम काम यहाँ ये रो से शुरू होता है. वर्क स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. सो नाउ अगर मैं इसको फिर से देखूं यहाँ पे ध्यान से देखना, हाँ, मैं ये टी हेड दिख रहा है मेरे को, है ना. इसको मैं आई कोलैप्स दिस. देखो हेड हाईलाइट हो रहा है ऊपर, देखा. तो इतना मेरे को क्लियर हुआ भैया, मेरे को आई एम मोर इंटरेस्टेड इन दिस डेटा, है ना. जैसे 181 हुआ, 180 हुआ, तो इन शॉर्ट ये हेड मेरे काम का नहीं है. अभी ये हेड मेरे काम का नहीं है ना. ठीक है. सो इन शॉर्ट देन व्हाट इज देन इंपॉर्टेंट फॉर मी, दिस बॉडी. देखो नीचे देखो बॉडी हाईलाइट हो रहा है ना. आई कम आगे ना, ध्यान से देखना. सबसे पहले मैं ये इंस्पेक्ट एलिमेंट को लूंगा. आई गो एंड हाईलाइट दिस टेबल एज यू कैन सी. ध्यान से धीरे से. हाउ देखो अगर बहुत कंफ्यूजन, डोंट वरी, गो टू द टॉपेस्ट एलिमेंट है जो भी पहले आपको मिल रहा है सबसे ऊपर. चलो ये मिल रहा है तो इसको क्लिक करो बस. देखो जैसे मुझे ये मिला ना, तो थोड़ा आपको यू विल हैव टू कम अप एंड यू कैन सी देयर इज अ टेबल एज अ दिस थिंग tag. ठीक है. So I am getting this table as a tag and ID is bug list, and this table which is getting highlighted as you can see when I mouse over the table. Now again हमको क्या समझा, what we understood is this table has something called as a title, has column names, has a blank column, and then there starts my data. बराबर. There starts my data. तो ये अगर मैं हेड को माउस ओवर करता हूँ या क्लिक करता हूँ तो हेड देखो ऊपर हाईलाइट हो रहा है. तो इतना मेरे को क्लियर हुआ कि मेरा इंटरेस्ट का चीज जो है वो डेटा ये हेड में नहीं है. तो मैं हेड को कोलैप्स करूंगा फॉर सम टाइम एंड देन आई माउस ओवर बॉडी. यस, दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर. बराबर. सो and that is what the mistake people do also, है ना. They don't see the head. दिमाग नहीं देखते सामने वाले का. ओके. सो यहाँ पे what will I do is ये जो बॉडी है यहाँ पे as you can see there are different TRs inside it as you can see. TR यानी कि क्या होता है मालूम क्या, रो, है ना. टेबल रो एंड टेबल डेटा as you can see. ये देखो ये पहला TR है, दिख रहा है आपको. ये दूसरा TR है, ये तीसरा TR है, ये चौथा TR है as you can see. there are n number of TRs हैं, जितने भी TRs है. ठीक है. सो दीज आर ऑल TRs. देखो मैं TR को हाईलाइट किया, देखो यहाँ. बराबर. ये सेकंड TR है, ये थर्ड TR है. सो होप यू आर क्लियर. सो अभी मेरे को क्लियर हुआ कि भैया मेरे को आई वांट दिस टी बॉडी इनसाइड दिस टेबल and then inside this I have all list of TRs. I have this all list of TRs. इतना क्लियर हुआ मेरे को. ठीक है. अभी आज मैं आपको ये मैंने एक कंसेप्ट आपका आपके सामने रखा है. हाँ, ये आपको क्लियर हुआ. ठीक है. नाउ आई विल ब्रिंग अप वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड जो मेरे को आज काम आने वाले आपके साथ. ठीक है. इसमें अभी तक किसको क्वेश्चन है ये स्ट्रक्चरिंग में? फॉर यू ऑन योर वेब पेज you may have different structuring, that's fine, but ye wala structuring what I'm showing you is for me, for my web page, and that's good. You'll be learning a new structure, and for you then they'll be different. Okay. Any question you have for me? Okay, good. So there's no question. Okay. So someone is asking me need to create a table first. No, हमको create नहीं करना पड़ता है. Table है ही ना हमारे पास, उसको हमको use करना पड़ता है. ठीक है. चल. Okay. Good. Let me now proceed on important concept using Selenium. Important concept using Selenium. ठीक है.
So let me open up my Eclipse. यहाँ है, ठीक है. So अब तक हमने if you remember find element को समझा था, driver dot find element. तो find element क्या करता है? As you know, it returns a web element for me. It returns a web element for me, है ना? Now, as we all know, anything and everything in Selenium for me is a web element. ये सबको clear है ना? Anything for me is web element. यानी कि मेरे लिए ड्रॉप डाउन बोलो वो वेब एलिमेंट है, बटन बोलो वेब एलिमेंट है, रेडियो बटन बोलो वेब एलिमेंट है ना? जो भी बोलो मेरे लिए वेब एलिमेंट. अभी जो टेबल हम लोग देख रहे हैं वो भी वेब एलिमेंट है ना? जो टेबल देख रहे हैं हम लोग वो भी वेब एलिमेंट है. एवरीथिंग इज इन Selenium a web element for me. So now driver dot find element singular है ये, हाँ ध्यान रखना, singular. This returns me a web element. This returns me a web element. As you remember, with any command, I always say you there are three important pieces, or you can say three important parts to a command. What are those three important parts? What are those three important parts to a command? Who can help me understand quickly? Go the chat. Yeah, it's object, action, and value, right? Object, action, and value, right? And in short, for me, this is a object corresponding to a link called as sign up, and sign up for a new account, whatever. And there's this action which is called as click, as you saw, and there's a value. Now value is optional, as we saw. Value is optional. Like similarly, अगर मैं ये कमांड को देखता था जो हमने उस दिन रन किया या क्रिएट किया है ना, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी यूजर नेम, ये मेरे लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, बराबर. एक्शन क्या है मेरे लिए? सेंड कीज. वैल्यू क्या है मेरे लिए? एडमिनिस्ट्रेटर. So hope you're clear with these three parts of any command called as object, action, value. उसको कभी भूलना मत, object, action and value. So object मैंने जैसे बताया था, find element returns me an object. Object is nothing but a web element for me. Anything and everything in Selenium is web element for me. Hope you're clear. ठीक है. बटन, चेकबॉक्स, जो भी ऑब्जेक्ट बोलो, टेबल, रो, कॉलम, मेरा एवरीथिंग, सेल बोलो बेटर, is a web object for me. ठीक है. Now as I said, find element is nothing but a singular यानी आप समझ सकते हो, a single object. But I have one more method called as driver dot find elements, as you can see. So this find elements returns me list of web elements. This find elements will return me list of web elements. हाँ, मैं थोड़ा अभी आपको धीरे धीरे ये टॉपिक को और गहराई से आपको समझाते जाऊंगा, है ना, कि फाइंड एलिमेंट्स का मतलब क्या है, वो लिस्ट जो रिटर्न करता है, फिर वो लिस्ट को कैसे ट्रैवर्स करते हैं. हाँ, मैं आपको धीरे धीरे ये टॉपिक को बताते जाऊंगा आपको गहराई में. ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए, आई विल मेक इट थिंग्स वेरी सिंपलर. अभी मान लो मैं ये कोड को रन करता हूँ, है ना, इतना पीस ऑफ कोड में रन करता हूँ, तो ये मेरे को क्या करेगा? इट विल ओपन अप द ब्राउजर, जैसे अपने को मालूम है. दिस विल ओपन अप द यूआरएल, जैसे अपने को मालूम है, ऊपर कमेंट में भी लिखा हमने. तो नाउ अभी जैसे मैं आपके सामने यहाँ पे हूँ, 1 सेकेंड. Very good. Some people have answered. Okay. So now if I come back over here and I log out from here, I am on this login page, है ना. यानी in short, अगर मैं ये URL open करूँगा तो I'll be on this login page with me, all of you. अभी login page पे I can see certain links over here, ना. This is sign up for a new account, last year password, है ना. There are certain links, as you can see. ये Mantis PT देखो लिंक है एक, है ना. अभी उस दिन मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, कोई भी लिंक जो रहता है, कोई भी जो लिंक रहता है, उसका टैग नेम किससे शुरू होता है? उसका टैग नेम किससे शुरू होता है? ए से शुरू होता है, ए से. ए स्टैंड्स फॉर एंकर. ए स्टैंड्स फॉर एंकर, राइट? या रानी या अनुषा, गुड गुड. ठीक है. सो ए स्टैंड्स फॉर एंकर. एंकर जो भी टैग ए से रहता है, एंकर से रहता है, उसको हम लोग लिंक बोलते हैं. तो जैसे एग्जांपल, इफ आई क्लिक ऑन दिस एंड कम ओवर हियर, देखो यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, देखो
ए इज फॉर एंकर, हाँ याद रखना मेरे साथ। अभी दूसरा देखते हैं हम लोग, लॉस्ट योर पासवर्ड, देखो ये भी ए एंकर है ना, या मैंटिस बीटी है, ये सारा एंकर है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज, कल एक्सपाथ में हमने सिंटैक्स देखा था, इफ यू रिमेम्बर, कल हमने एक्सपाथ में एक सिंटैक्स देखा था। डू यू रिमेम्बर दैट सिंटैक्स? डू यू रिमेम्बर दैट सिंटैक्स? दिख रहा है अभी आपको ये वाला सिंटैक्स, स्लैश स्लैश टैग नेम एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, बराबर, स्लैश स्लैश टैग नेम एंड द कंडीशन व्हिच वाज एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू। अभी इसको ना मेरे साथ समझो। इन शॉर्ट ये कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि whatever whichever tag name satisfies this condition that would be my web element। जो भी मेरा टैग नेम है, अगर इफ इट इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, है ना, जैसे एग्जांपल हमने देखा, अगर हमारे पास ये यूजर नेम था, इसका टैग नेम वाज इनपुट एंड एट्रीब्यूट व्हिच वाज आईडी, है ना, एट्रीब्यूट वैल्यू क्या था हमारे पास, यूजर नेम, है ना, तो हम क्या बोल रहे थे उसको, स्लैश स्लैश इनपुट, है ना, स्लैश स्लैश इनपुट, यहाँ पे आईडी इक्वल्स टू यूजर नेम, दिख रहा है सबको। तो ये वाला हमने कंडीशन इस पे अप्लाई किया था, व्हिच वाज सेइंग बॉस दिस इज द यूजर नेम व्हिच आई एम लुकिंग फॉर। इन शॉर्ट अगर मैंने कंडीशन नहीं डाली तो क्या? सो माय क्वेश्चन टू यू इज, अगर मैं सिर्फ स्लैश स्लैश टैग नेम बोलता हूं तो उसका मतलब क्या, बताओ मुझे। अगर मैं सिर्फ स्लैश स्लैश टैग नेम बोलता हूं, नॉट पुटिंग एनी कंडीशन, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे बताओ। कौन बताएगा? सो या, सो दैट मीन्स या इट विल सर्च, या एग्जैक्टली, गुड गुड राहुल, करिश्मा, या रानी, या गुड। सो आप लोग जो आंसर दे रहे हो मुझे वो द चैट इज, it will search for all the web elements with this tag name. It will search for all the tag name, all the web elements with this tag name over the, I mean, across the DOM, across the page. In short, यहाँ पे अगर मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, अभी एक मिनट, इंस्पेक्ट एंड फायर पाथ, आप लोग इसको क्रो पाथ से कर सकते हो, है ना। तो राइट क्लिक किया मैंने, ये मेरे पास फायर पाथ है, यहाँ पे आप लोग क्रो पाथ से करना। अगर मैं इसको देखो स्लैश स्लैश टैग नेम विच इज ए बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक्स पाथ है, हाँ ठीक है, ये देखो नीचे दिख रहा है आपको, सब हाईलाइट हुआ, देखो ये सारे ए, देखो इतने, यानी कि इट विल ट्राई टू गो एंड फाइंड ऑल द वेब एलिमेंट्स। होप यू आर क्लियर विद दिस थिंग। ये मैंने आपको क्यों बताया, and now related with the exercise which I'll do it with you. So the exercise says I will try to find all the links on the page. What is the exercise? The link say, the exercise says I'll try to find all the links on the page, बराबर। तो when I say I'll try to find all the links on the page, उसको मैं कैसे फाइंड करूंगा, अभी मैं टैग नेम यूज करूंगा उसके लिए। क्या यूज करूंगा मैं, टैग नेम, जैसे एग्जांपल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स, मैं क्या बोलने वाला हूँ यहाँ पे, फाइंड एलिमेंट्स, ध्यान रखना, हाँ ये एलिमेंट नहीं है सिंगुलर, ये प्लूरल है ना, एलिमेंट्स। अभी मैं जो सारे एलिमेंट्स पेज से निकालने, मुझे मेरे जो सामने पेज है ना, लेकिन किससे निकालना है अभी, उसके लिए मैं लोकेटर यूज करने वाला हूँ, बाय डॉट टैग नेम। अब तक हमने आईडी देखा, नेम देखा, क्लास नेम देखा, लिंक टेक्स्ट देखा, आज हम टैग नेम देख रहे हैं, एक्सपाथ देखा, आज हम टैग नेम देख रहे हैं। और टैग नेम में आप स्ट्रिंग पास करोगे जो कि है ए, ठीक है। और अभी क्लियर, मैं वापस टाइप करके दिखाता हूँ आपको, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स प्लूरल, हाँ, बाय डॉट टैग नेम व्हिच इज ए इज अ स्ट्रिंग, है ना, ठीक है। अब व्हेन आई, यू रिमेंबर, अभी मुझे इसका रिटर्न टाइप समझो नहीं मालूम है, मुझे इसका अभी रिटर्न टाइप नहीं मालूम है, एग्जांपल, है ना, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, याद है, कंट्रोल टू स्पेस एल, कंट्रोल टू, थोड़ी सांस, थोड़ी हल्की सी सांस लेना ना, ऐसे सांस लेना पहले, नहीं तो कुछ लोग है ना एकदम फटाफट करने की कोशिश करते हैं, है ना, कंट्रोल टू एल फिर मिलता ही नहीं है उनको, है ना, थोड़ा सब्र करना, है ना।
सो कंट्रोल 2 थोड़ा हल्के से वेट करना एंड देन से एल ओवर हियर, ठीक है। तो ये देखो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स मिल गया, तो मैं उसको बोलूंगा लिस्ट ऑफ लिंक्स बोलूंगा मैं इसको। क्लियर हुआ अभी आपको? लिस्ट ऑफ लिंक्स। सो दिस विल गेट मी ऑल द लिंक्स ऑन द पेज, दिस विल गेट मी ऑल द लिंक्स ऑन द पेज। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये लिंक्स जो है मेरे पास, लिस्ट जो है, मैं उसको ट्रैवर्स करने वाला हूँ। ट्रैवर्स करने वाला हूँ यानी कि जैसे एरे को कैसे करते हैं अपन, एक 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 एलिमेंट को, वैसे हम लोग लिस्ट के अक्रॉस ट्रैवर्स करने वाले हैं एंड वील ट्राई टू फाइंड द टेक्स्ट फॉर दैट लिंक, वील ट्राई टू फाइंड द टेक्स्ट फॉर दैट लिंक। हाँ, तो अभी हमने एक नया चीज कौन सा समझा, ड्राइवर दैट फाइंड एलिमेंट्स, फिर हमने समझा इट रिटर्न्स मी अ लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, वो समझा हमने। थर्ड अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले बिफोर आई आइटरेट, एंड दैट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू हेल्प यू अंडरस्टैंड। मान लो अभी मेरे पास कोई वेब एलिमेंट है, हाँ देखो, जैसे एग्जांपल आपने ये वाला देखा, ये वाला, हाँ ठीक है। मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए आपके सामने कॉपी करूंगा ऐसे, ये मेरे लिए वेब एलिमेंट था और उस पर मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन मैं अभी इसको समझे डिलीट कर रहा हूँ। तो एज यू नो दिस विल रिटर्न मी अ वेब एलिमेंट ओनली, दिस विल रिटर्न मी अ वेब एलिमेंट ओनली। अभी आप यकीन कैसे आएगा भाई, दिस विल रिटर्न मी अ वेब एलिमेंट ओनली, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कंट्रोल 2 स्पेस एंड एल, वापस कर रहा हूं मैं आपके सामने, कंट्रोल 2 बोलोगे आप, कंट्रोल 2 बोल के थोड़ा देर, you will take a minor gap maybe for a second and then you press L, देखो control 2 and L, so it is returning a web element। मान लो मैं इसका नाम यूजर नेम रख रहा हूँ, है ना, वेब एलिमेंट यूजर नेम, ऐसे मैं इसका नाम रख दिया। अभी ध्यान दो इस पे, ये जो मैंने नाम रखा हुआ है यहाँ पे वेब एलिमेंट यूजर नेम, है ना, ठीक है। अभी मान लो मुझे ना अभी इसका ना आई वांट टू प्रिंट सम वैल्यू फॉर दिस यूजर नेम। नाउ व्हेन आई से सम वैल्यू फॉर दैट यूजर नेम मींस व्हाट, से एग्जांपल, अभी हम यहाँ पे आगे वापस, ये यूजर नेम है, अभी ये एक्सपाथ दिखा रहा है बट आई गेट बैक टू HTML, ये मैंने क्लिक किया, देखो ये दिख रहा है ना आपको, ये देखो इसको एक एट्रीब्यूट है आईडी, दूसरा एट्रीब्यूट है क्लास, तीसरा एट्रीब्यूट है टाइप, है ना, नेम एक एट्रीब्यूट है। तो मान लो अभी मेरे को, मैंने इसको, जब मैंने इसको वेब एलिमेंट बनाया था तो मैंने आईडी एट्रीब्यूट लिया था बराबर, लेकिन इसका नेम एट्रीब्यूट का क्या वैल्यू मुझे नहीं मालूम, ऐसे मान के चलो, ऐसे समझ के चलो, इसका जो नेम एट्रीब्यूट है उसका वैल्यू क्या है वो अपने को नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके हम लोग बोलेंगे वेब एलिमेंट यूजर नेम डॉट, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है गेट एट्रीब्यूट, दिख रहा है आपको सबसे पहले, वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, we which is web element username dot get attribute, है ना। अभी get attribute means what, get the value for that attribute, attribute is nothing but a property, you remember मैंने जो बताया था property and a value, property and a value, जैसे example attribute, id is attribute, value is username, class is attribute, autofocus is user value, टाइप इज एट्रीब्यूट, टेक्स्ट इज वैल्यू, है ना, या प्रॉपर्टी वैल्यू बोलो, की वैल्यू बोलो, एट्रीब्यूट वैल्यू बोलो, है ना। सो नाउ जैसे मैं गेट एट्रीब्यूट बोलता हूँ तो इसका मतलब वो क्या बोल रहा है, भैया ये एट्रीब्यूट का तुमको वैल्यू चाहिए, तो उसके अंदर मुझे एट्रीब्यूट पास करना पड़ता है, मान लो नेम, ठीक है। अभी मैं इसको फिर से रिटर्न वैल्यू लूंगा, कंट्रोल 2 एंड एल, ये देखो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, है ना। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ एट्रीब्यूट ऑफ यूजर नेम, समझ में, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करते हैं हम लोग, अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सी चीजें बता रहा हूँ, फिर मैं सब एक साथ बताऊंगा तो आपको पूरी चीजें रिलेट हो जाएगी, है ना, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये मेरा एट्रीब्यूट की वैल्यू बनी थी यहाँ पे, है ना, गेट एट्रीब्यूट नेम, इस यानी कि वो जो नेम की एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे इस स्ट्रिंग में आके बैठी है अभी, लेकिन क्या है अपने को समझना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सिसआउट यूज करेंगे, है ना, ओके क्लियर, ठीक है। तो अभी ये कोड मेरे लिए क्या करेगा भाई, ये मेरे लिए फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करेगा, यूआरएल ओपन करेगा, ये वेब एलिमेंट बनाएगा अपने पास, देखो ये वाला वेब एलिमेंट, और उसी वेब एलिमेंट का
एट्रीब्यूट का वैल्यू ये स्ट्रिंग में डाल के प्रिंट करके दे देगा अपने को। ठीक है, तो इसको रन करते हैं हम लोग एक बार फटाक से। एनी क्वेश्चन फॉर मी टिल देन? कोई क्वेश्चन है मेरे लिए? अरे तुम नो बोलने में भी इतनी कंजूसी करते हो, मालूम है? सोचते हो बोले कि नहीं बोले। ठीक है, सो नाउ it has opened up the browser. अच्छा उसने एक सेकंड ना, अच्छा आ गया वैल्यू। हाँ एक्चुअली कोड पीछे वो ब्राउजर ओपन होके, ये देखो यूजर नेम दिख रहा है आपने को। सो दिस इज द वैल्यू व्हिच इज गॉट प्रिंटेड। सो वैसे अगर मैं और कोई एट्रीब्यूट लेता था, वैसे अगर मैं और कोई एट्रीब्यूट लेता था, जैसे मैंने अभी नेम लिया करके यूजर नेम मिला, साइज लेता था तो मैक्स लेंथ लेता था तो, है ना, सो मुझे आई वुड हैव गॉट द अदर वैल्यूज। सो होप ऑल ऑफ यू क्लियर। So this way I'll be able to print the value for a attribute. Hope you're clear with this point as well. ठीक है, so अभी हमने find elements को समझा आज, हमने get attribute को समझा आज, है ना, एंड मैंने आपको find elements में list आता है, वो भी list भी मैंने आपको दिखा दिया, है ना। थोड़ी देर पहले हमने वेब टेबल कैसे होता है वो भी हमने स्ट्रक्चरिंग देख लिया। अभी मैं वापस लिस्ट पे आता हूँ। ये मीटिंग सिर्फ 4 मिनट्स में खत्म हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, विल ज्वाइन इट अगेन इमीडिएटली। हाँ, फॉर इंफॉर्मेशन गाइज, आई एम बीइंग also requesting Zoom के टीम को, so that like they can understand our purpose, like the NGO purpose, and if they can provide us some license sort of, so that we can use their Zoom session for unlimited time, है ना। ठीक है, तो आप भी if you can even request just Zoom, तो आपको just आपको कस्टमर का email ID मिल ही जाएगा, या आपको चाहिए तो फिर anybody can help in the group. You can even requesting like training FS का email ID डाल के you can request like we have been having this is for NGO, and if you can assign us the license, free license, so that we can use as a part of our NGO, है ना। तो हर 40 मिनट में आपको फिर से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सो let us go back now। यहाँ पे this is the link which is got created, as you can see, है ना। So driver.find elements by tag name A, as you saw, this will return me a list of all web elements, which is nothing but all links on the page. All links, why? Because the tag name starts with A. Okay, tag name starts with A. That's the reason I said list of all links. Now what will I do is, I will now traverse across the list. I'll now traverse across the list. For that, I'll use a concept of, you can say, a loop called as for each. फॉर ईच मैं आपको समझा भी देता हूँ फॉर ईच कैसे काम करता है। जैसे आई से कंट्रोल स्पेस, आपको दिख रहा है फॉर ईच हो भैया, है ना। लेफ्ट में देखो आपको ये हेल्प दिख रहा है यहाँ पे इसका, है ना। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सी इसको समझना। फॉर ईच क्या बोल रहा है, इट इज फॉर ईच वेब एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। ध्यान से देखो, फॉर ईच वेब एलिमेंट फ्रॉम दी, ये नाम है, ये क्या है, डेटा टाइप है वेब एलिमेंट, और ये वेरिएबल का नाम रहेगा, एंड ये मेरे को लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स है। जो हमारे लिए लिस्ट ऑफ लिंक्स इज नथिंग बट व्हाट, ये लिस्ट ऑफ लिंक्स क्या है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स है ना। देखो लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स, है ना। सो इट सेज मी फॉर ईच वेब एलिमेंट, जो भी नाम रहेगा उसका, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट्स। सो व्हाट विल हैपन इज, इट विल ट्रैवर्स अक्रॉस ऑल द वेब एलिमेंट्स वन बाय वन। It will traverse across all the web elements one by one. मैं वापस अभी करके दिखाता आपको। देखो मतलब for space control space, हाँ वापस for control space, देखो for each, देखो लेफ्ट में I press enter, तो इसका नाम रखो आपसे link, है ना। for each link from the list of links बोलो, for each web element which is link from the list of links. Hope you're clear, ठीक है।
So now I will now say print. I will print, as you remember, the attribute for each web element. अब ये ऐसे individual web element है ना, तो इसका मुझे एक attribute print करना है. हाँ, अभी मुझे attribute समझो, मान लो अभी मैं लिस्ट आपको वापस दिखाता हूँ यहाँ पे. ठीक से, I'll go back to my browser and वहां पे समझो मैं आपको ना I'll show you the link actually. एक मिनट. Guys, we have around 1 minute. The meeting will end abruptly and then it will start immediately. You can even start immediately again. Huh? Oh, please join as soon as possible. So देखो ये लिंक है, as you can see. ये देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना. देखो साइन अप फॉर अ न्यू अकाउंट, ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ना. सो मैं वो टेक्स्ट प्रिंट करने वाला हूँ. आई विल से डॉट गेट टेक्स्ट. क्या बोलूंगा मैं उसको? सिस आउट लिंक डॉट गेट टेक्स्ट. ठीक है, तो इसका वो टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा, वो लिंक का टेक्स्ट प्रिंट हो जाएगा. ठीक. सो लेट मी राइट क्लिक एंड से रन एज जावा एप्लीकेशन. So it will go